मैं बोल रहा हूँ, देखो फिर से देखो, किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ. तो व्हाट इज दैट? whenever I am taking two what conductors here, and from this I am taking three. So according to this law, net current at the junction is always zero. Means what? The approaching current is taken as positive and receding current is taken as negative. Therefore, summation of current is what? Zero. This is what Kirchhoff's first law. समेशन ऑफ करंट इज ऑलवेज जीरो. जंक्शन में कितना करंट है? जीरो करंट है. जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है. कंडक्टर में भी उतना ही. कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो नेट करंट इन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है. एक एट ए पॉइंट, पॉइंट में जितना करंट आ रहा है उतना चला जाएगा. जीरो करंट रहता है बट फ्लो होता है ये करंट. जैसे रिवर में वाटर फ्लो होता है, कोई वाटर नहीं रहता है वह. तो अप्रोचिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव I1 प्लस I2 and receding current is taken as negative minus I3 minus I4 minus I5 is 0. This is what Kirchhoff's first law. Draw the diagram and work out. Draw the diagram. This is what Sir, can Kirchhoff's you? first law. Yes, Sir, definitely. junction is known as point. Junction is what? This is the junction. This is the junction. You see, junction I1 current junction को approach किया, I2 current junction को approach Sir, किया. junction is a point, sir. Yes, junction is a point. Four. अरे junction मतलब है square. अरे junction is a square. अरे स्क्वायर को Yes, sir. जंक्शन बोलते हो ना. वह सारे के सारे रास्ता है कि वहां पे मिल रहा है. हुआ कि नहीं? ट्रैफिक यहीं पे Yes, खड़ा sir. है. Yes, sir. अरे ट्रैफिक खड़ा है ना यहीं पे, है कि नहीं? Yes, sir. So what is that? I1 is approaching towards O, I2 also approaching towards O, and I3 is what? Receding away from O, I4, I5 is receding away. Is it clear? Therefore, approaching current is taken as positive. I1 plus I2 is positive here, and receding current I3, I4 and I5, receding currents are taken as negative. Minus I3, minus I4, minus I5 is 0. समझ में आया? अरे कोई पूछ रहा था, पायल पूछ रहे थे शायद. ये कौन पूछ रहा था? क्लियर हुआ? अरे फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ Sir, ना? बोलो उसको sir, two currents will divide Definitely. into three currents. Yes, अरे one current may also divide what? 5 branches. जैसे महानदी रिवर इज कमिंग एंड यहीं पे डिवाइड हुआ कि नहीं? कटजुडी एंड महानदी, फिर यहीं पे डिवाइड हुआ 2 रिवर में, फिर यहीं पे डिवाइड हुआ 2 रिवर में. ऐसे भी करंट हो सकता है. अरे समझ में है कि नहीं? मेन करंट आया पोल से, घर में जब एंट्री मारा है तो हर एक रूम में डिवाइड हो रहा है. करंट कैन बी डिवाइड जस्ट लाइक योर रिवर वाटर. अंडरस्टैंड दिस? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे 2 रिवर यहीं पे मिले, फिर 3 रिवर में कन्वर्ट हो गए, 4 5 वैसे ही हो सकता है. द फ्लो ऑफ रिवर इज सेम एज फ्लो ऑफ करंट. अंडरस्टैंड दिस? मतलब I1 प्लस I2 मिलके I3 प्लस I4 प्लस I5 होगा. अरे तीनों को मिला लो, जितना करंट है दोनों को मिला लो उतना ही करंट मिलेगा. समझ में आ रहा है स्पंदन? हेलो? Yes, sir. ओके, लिख दिए सभी? डायग्राम रख के लिखे, अच्छी तरह समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये. हो गया? तो दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इन पे चार्ज कंजर्व हो रहा है. राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो दिस लॉ, write down, this law is accordance to the law of conservation of charge. This law is accordance to the law of conservation of charge. Here charge remains conserved. This law is accordance to the law of conservation of charge. Law of conservation of charge. Clear? This is what the first law. Now let's move to the second law. Kirchhoff's second law, very important one. Write down. Number 2, Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law. ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासरूम की जरूरत है. Kirchhoff's second law और Kirchhoff's network law और loop law. Kirchhoff's network law or voltage law. Kirchhoff's, this is what voltage law. Voltage law famous is KVL. वो KCL है, ये KVL है. और Kirchhoff's loop law.
anything you can work out. Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law, or Kirchhoff's loop law. KVL, वो था KCL, ये KVL. फर्स्ट लॉ क्या था? नेट करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो. किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होगा? नेट पोटेंशियल इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो. नेट पोटेंशियल इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो. अंडरस्टैंड दिस? लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट the net potential, this law states that the net potential in a closed loop, this law states that the net potential in a closed loop is always zero. This law states that the net potential in a closed loop is always zero. Net potential in a closed loop is always zero. What do you mean by this? देखो, सभी ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो. अरे स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो, इसको एनालिसिस करेंगे आज अभी. तो नेट पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो. नेट पोटेंशियल इज जीरो, ये लॉ है. समेशन ऑफ द पोटेंशियल इज जीरो. कुछ भी मत लिखो अभी सुनो जरा. सपोज E2 इज ग्रेटर देन E1, तो करंट इसमें जाएगा I, यहीं पे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. तो इसमें क्या बोला है? नेट पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप. लूप मतलब ये पूरा लूप हो गया. ये पूरा लूप में नेट पोटेंशियल जीरो. पोटेंशियल मतलब क्या है? बैटरी का भी एक पोटेंशियल होता है, इसका भी एक पोटेंशियल होता है, पर जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी पोटेंशियल होगा ये सर्किट के अंदर, तो नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो इन ए क्लोज लूप. अंडरलाइन दिस, क्लोज्ड. इन ए क्लोज लूप नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो. समझ में आया? तो इसका साइन कन्वेंशन क्या है? देखो, साइन कन्वेंशन क्या है? वेरी इजी साइन कन्वेंशन. I current is flowing, this is the resistance. Clear? Always current is flowing from high potential to low potential. Do you agree with this? अरे करंट जो फ्लो हो रहा है, always current is flowing from high potential to low potential. Do you agree with this? कभी Sir, भी after low high passing नहीं that मिलेगा. resistance, potential decrease. Yes, potential difference. This is high potential. Current is flowing along this direction. मतलब this is always high potential. This is always low potential across the resistance. Is that clear? So what is this sign convention? Sign convention. If you are moving from positive to negative, that potential is taken as negative, minus IR. If you are moving from negative to positive, that potential is taken as positive potential, plus IR. मतलब जिस साइन की तरफ जाओगे वही साइन होगा पोटेंशियल का. ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन है. बाकी जो बुक में दिया गया है काफी कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया, बट मैं एक सेंटेंस में बोलूं, जिस साइन की तरफ जाओगे वही साइन लोगे पोटेंशियल का. काम खत्म. जिस साइन की तरफ जाओगे. देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं अभी. ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, मतलब ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है. थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ. तो ये करंट इधर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. समझ में? एंड बैटरी का तो ये हमेशा ये बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव है, तो चेंज कभी नहीं होगा. फिर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. करंट फिर ऐसे ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव. करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव. मैं पोटेंशियल पहले निकाल दिया, पहले करंट डायरेक्शन दिखा दिया, फिर पोटेंशियल का भी साइन निकाल दिया. अभी लूप लॉ डालूंगा, किर्चॉफ्स लूप लॉ. व्हाट इज दैट? लूप में तुम क्लॉकवाइज जा सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो, तुम्हारा मर्जी. अरे क्लॉकवाइज जाने के बाद जाने के जाओ, जितना आंसर मिलेगा. एंटी क्लॉकवाइज भी जाओ, उतना ही आंसर मिलेगा. देखो मैं क्लॉकवाइज गया, तो व्हाट इज दिस लूप लॉ? व्हाट इज दैट? आई कहीं से भी एक शुरुआत कर सकते हो. I इंटू R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलो. IR1 माइनस आई आर नेगेटिव होगा, माइनस IR1. E1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अरे प्लस टू माइनस जा रहे हो, क्या होगा? माइनस E1 minus I. माइनस E1. IR2 क्या होगा? अरे IR2 प्लस होगा या माइनस माइनस? आई आर टू प्लस टू माइनस जा रहा हूँ, माइनस IR2 होगा. ये माइनस IR3 होगा. E2 प्लस होगा या माइनस होगा? अरे E2. आनंदिता बोलो.
अरे E2 प्लस होगा या माइनस होगा? हेलो, अरे E2 ऐसे जा रहे हो, माइनस टू प्लस जा रहे हो, तो फिर क्या है? यस प्लस। अरे माइनस टू Plus. प्लस जा रहा है तो प्लस E2 है। ऐसे जा रहा हूँ तो माइनस IR4 इज 0। SIR. मतलब क्या है? देखो कुछ भी मत लिखो और एक डेफिनेशन मिलेगा यहीं से। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस IR1 माइनस E1 माइनस IR2, क्लियर, माइनस IR3, दिस इज व्हाट प्लस E2, दिस इज व्हाट माइनस IR4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये समेशन ऑफ बी 0, मतलब ये इसका इम्प्लीकेशन है। इज अ क्लियर नॉट? समझ में आया? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो माइनस IR1, क्लियर, माइनस IR2 माइनस IR3 माइनस IR4 इज इक्वल E1 माइनस E2 लिख सकते हो। ये भी कुछ बुक में ये भी डेफिनेशन लिखा गया है। हुआ, इसको जो बच्चे लिखते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, फुल मार्क मिलेगा। व्हाट इन ए लूप नेट पोटेंशियल, इन ए क्लोज लूप नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 0। माइनस कॉमन लेने से फिर यही चीज मिल रहा है। इसलिए तुम्हारा मर्जी क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ। अरे समझ में आया लूप लॉ? हेलो, लूप लॉ Sir, समझ? why are we not multiplying I with E? आई नो ई इज अ पोटेंशियल। अरे ई इज द EMF ना। अरे नेट Yes, पोटेंशियल, sir. I into R is potential, EMF is itself is a potential, you cannot multiply I here. Is that clear not? E1 is itself is a potential, E2 is potential, net potential is 0. Is that clear not? अरे समझ Yes, में? sir. Current can flow from negative terminal of a battery to negative terminal. Definitely if this potential is higher than this, then definitely in this battery positive to negative it will flow. No option is there. Negative to negative, na? Negative, yes, definitely no problem will be there. If this potential is very higher than this one, obviously current will drag from positive and here from negative to negative. No problem will be there. Clear? Because one is very high Yes, sir. potential. This is high and this is low potential. Is that clear? Clear about this law? Yes, Are you sir. clear about this law? Now draw the diagram and write down all these three. Draw this diagram. And the very important one sentence is what the direction you are moving to the potential, it will acquire that side. Means if you are moving towards negative sign, potential will become negative. If you are moving towards positive sign, potential will become positive. Very simple language. Clear? Write down now. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? देखो सेकेंड डेफिनेशन के तरफ ही सब इंपॉर्टेंट लिखते हैं, बट फर्स्ट डेफिनेशन लिख दिया तो फुल मार्क मिलेगा। सेकेंड डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? ये स्टेटमेंट को स्कूल में लिखवाते हैं, क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of the EMFs, the algebraic sum of the EMFs in a loop is always equal to the sum of the product of current and the resistance of the circuit. समझ में है? अरे ये इसको ऐसे लिख देते हैं, ये सम मतलब सब्ट्रैक्शन आल्सो सम बताया था 11th में। अरे सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। ये नेगेटिव को नेगेटिव में सब्ट्रैक्शन नहीं लिखते, सम ही लिखते हैं। अरे सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन बताया था ना, हुआ कि नहीं? तो ये डेफिनेशन क्या है? दिस लॉ मे आल्सो स्टेटेड दैट द algebraic sum of the EMF, द algebraic देखो E1 minus E2 मतलब algebraic sum of the EMF, algebraic sum of the EMF in a loop is always equal to the sum of product of current and the resistance of the circuit in that loop. समझ में है सभी को? अरे ये भी लिख सकते हो, बट ये सबसे इजी है, समेशन ऑफ पोटेंशियल इज 0, काम खत्म। अरे समझ में है? हेलो देवी प्रसाद, Sir, सेकंड why it डेफिनेशन। is sum of यस यस, sum of ये अरे सम है EMF? ना, देखो, अरे सम ऑफ ईएमएफ हुआ ना, E1 प्लस माइनस E2 मतलब सम ऑफ ईएमएफ हुआ ना। अरे सम ऑफ Yes, sir. Yes, ईएमएफ sir. इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन द लूप। अंडरस्टैंड दिस? लिखो, Yes, sir. Yes, लो, sir. ओके लिखो, राइट डाउन। Yes, two cells in it. You can add infinity cells, Ashish.
you can add infinity cells, not only 2 cells, आगे करेंगे 3 cell 4 cell 100 cell 1000 cell you can add, no problem, but you should follow this rule. समझ में आशीष? अरे 1000 cell you can add, no problem, by using this what Kirchhoff law. Right on, second definition लिखो और नोट करके लिख दो, नोट करके लिखो. इसमें अगर ये फर्स्ट ये डेफिनेशन के ऊपर स्ट्रेस करोगे तो साइन कन्वेंशन बच्चे गलत कर देते हैं, वही सबसे दिक्कत है. इसलिए समेशन ऑफ पोटेंशियल जीरो, काम खत्म. और राइट ऑन, Kirchhoff's second law can also be stated as Kirchhoff's second law can also be stated as the algebraic sum of the EMFs, the algebraic sum of the EMFs in any loop, the algebraic sum of the EMFs in any loop is equal to the sum of the products of current, sum of the products of current and resistances in it, मतलब है देखो, इसका है समेशन ऑफ IR, इसका है समेशन ऑफ E, क्लियर, ऑलवेज इक्वल है. अरे इसका क्या आएगा, समेशन ऑफ IR, इसका है समेशन ऑफ E, दैट इज ऑलवेज इक्वल. क्लियर, दैट इज व्हाट सेकंड लॉ. सर एक बार थोड़ा रिपीट कर देंगे. रिपीट, ओके, क्या लिखे हो बोलो. This law may also This stated law as states the that- algebraic sum of the EMFs in any loop of a circuit is equal to the sum of the products of currents, and resistances in In it. any loop of the circuit, In any loop of the circuit is equal to the sum of the products of the currents and resistances in it. The sum of the products of currents and resistances in it. Clear? अरे समझ में आया? sir. क्लियर हुआ? तो इसी का मल्टीपल ब्रांच लेके कल डिस्कशन करेंगे, बट कल MCQ आधा डिस्कशन करेंगे, इसको आधा कैरी आउट करेंगे. हुआ? इसको आधा कल कैरी आउट करेंगे. MCQ सब भेजो जो डाउट है, बाकी देखेंगे.